We are live in 3, 2, 1. We are live now. Good afternoon, viewers. We at Bonefit welcome you for our fifth Facebook Live session. Today we have very interesting topic for discussion, which is robotic knee replacement surgery. To discuss on this very important topic, today we have with us Dr. Rakesh G. Nair from Mumbai. Dr. Rakesh is a senior orthopedic knee replacement surgeon with more than 30 years of experience in dealing with operations and procedures involving knee replacement surgeries as well as reconstructive surgeries of the bones and joint. Dr. Rakesh Nair is a director of knee care and working as a consultant knee replacement surgeon at PD Hinduja Hospital, Khar, Holy Family Hospital, Pendra, Robodoc Center, Criti Care, Asia Hospital, Andheri, Zen Hospital, Chembur, specializing in exclusively knee replacement surgery. This hospital has state-of-the-art infrastructure that attract patients for all over India and abroad. Dr. Rakesh Nair have done over more than 2,500 knee replacement surgeries till date. Dr. Rakesh Nair was honored with Times Achievers 2022 award by Times of India for contribution in joint and replacement with advanced robotic technologies. Dr. Rakesh has been regular part of various national and international conferences and has shared his rich knowledge. We welcome you, sir. Over to you. Hello. Yes, sir. Yeah, can I? Yeah. Hi, I'm Dr. Rakesh Nair. I'm a consultant robotic knee replacement surgeon at mainly at Zen Hospital, Chembur and Hinduja Hospital at Khar. Today I'm going to be talking to you about wear and tear of the knees, means घुटना जब घसता है उसके लिए हमारे पास क्या क्या options है. Now, the knee starts wearing out in some people in an early age of even 40, 45 and some people at 60, 65. वेयर एंड टेयर का मतलब क्या है? मींस ये नॉर्मल अगर आपको ये दिखता है, ये आपका नॉर्मल घुटना है. व्हाट यू सी नॉर्मली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, ये जो गादी रहता है बीच का, वो जैसे उम्र बढ़ता है वो घसाई चालू हो जाता है. नाउ व्हेन इनिशियल स्टेजेस में समझो जब घसाई चालू हो रहा है, जब पेशेंट बोलता है कि मैं सीढ़ी उतरते चढ़ते समय, मैं नीचे बैठ के उठते समय पेन होता है, मींस वो दैट इज दैट इनिशियल स्टेज ऑफ आर्थराइटिस which can be treated with the right form of exercises. It can be treated by treating a deficiency state, means अगर आपका बेसिक कैल्शियम, विटामिन डी, B12 सब अगर कम है शरीर में, तो खाली उसको करेक्ट करके और प्रॉपर एक्सरसाइज से भी ये माइल्ड स्टेज में आपका घुटने का दर्द को आप उसको कम कर सकते हैं. इफ इट इंक्रीजेज एट सम पॉइंट, कभी लगता है कि बढ़ते जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली वी लुक एट एन इंजेक्शन इन द नी ऑल्सो, विच कैन बी फॉर द रीजनरेशन ऑल्सो एंड विच कैन बी अ पेन किलर इंजेक्शन. तो ये सब शुरुआत में है जब आपका घुटना घसाई चालू हो रहा आहे, मीन्स गुडघ्याचं घसायचं चालू होताना हे सगळं उपचार चालू होतं, हे कामाचं आहे. And the most important thing again which I'm saying is it's the exercise which you can always learn from your physiotherapist and start doing it at home. So these are basic options where I've told you how you can save the knee. अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो घसता है तो उसमें क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, मीन्स ये आपका वापस ये घुटना रहता है, ये गादी जो मैं बोल रहा हूँ ना ऊपर का जो दिख रहा है आपको, हल्का सा जो गादी दिखता है, ये कार्टिलेज बोलते हैं इसको, जैसे जूते का सोल जैसा है उसका कार्टिलेज रहता है. जब वो घसाई हो जाता है, मीन्स ये घसाई जब चालू हो जाता है, तो हमको फिर ये घुटने को ऑपरेशन के हिसाब से, नॉर्मल जो हम रेगुलर ऑपरेशन जो करते हैं वो घसाई का ऑपरेशन करते हैं, कि वो गंदा गादी जो है, वो घस गया जो गादी है, उसको हमको थोड़ा सा एक 5 से 7 मिलीमीटर खाली ऊपर का पार्ट जो है हल्का सा थोड़ा सा उसको निकाल के हम ये कैप बिठाते हैं सीमेंट के साथ. नीचे का भी पार्ट जो घस जाता है उसका भी खाली उसको एक सरीका करने के लिए भी जस्ट मेक इट इक्वल फ्रॉम द लोअर साइड ऑल्सो ऑफ द नी, एंड देयर इज अ कैप विच इज पुट बिलो ऑल्सो विथ योर न्यू कार्टिलेज, और ये घुटने को हम वापस करते हैं. देख रहे हैं आपको, तो ये खाली ऊपर का कैप, नीचे का कैप, पूरा कुछ घुटना चोप के नहीं निकालते. वी डोंट चेंज द होल नी, इट इज ओनली लाइक अ सरफेस, मींस जैसे हम दांत का कैप चेंज करते हैं वैसे ये घुटने का कैप चेंज होता है, और ये पूरा ऐसे घुटना जो है फिर ये पूरा मूवमेंट करता है.
नॉर्मली मैं जब पेशेंट आता है मेरे पास तो उनके पास तो क्या लेफ्ट राइट में तो उनको ज्यादा फर्क भी नहीं समझता, तो मुझे फिर वही ऑप्शन रखना पड़ता है जहां पे मैं दोनों घुटना जो है साथ में रिप्लेस करता हूं, कि इसमें आसानी हो जाती है पेशेंट को चलने के लिए। तो ये जो हम अभी इतने सालों से कर रहे हैं कन्वेंशनल जो बोलते हैं ना, ये तो अभी मेरे पास तो अभी 20 साल का एक्सपीरियंस है जहां पे हमने घुटना बदली करके पेशेंट 4 4 6 घंटे 8 घंटे में हम उसको खड़ा करके चलाते हैं। तो ये हमारे पास लाइफ है। पेशेंट मुझे पूछता है कि डॉक्टर साहब ये घुटना कितने साल चलने वाला है, तो उनको सिंपल ऑप्शन रहता है कि जितना आप उसका अच्छा ख्याल रखेंगे उतना उसका लाइफ 15 20 साल आराम से चलेगा। ख्याल रखने का मतलब क्या है कि आप घुटने के हिसाब से एक्सरसाइज करें, हड्डी को मजबूत करने के हिसाब से हमको वो एक्सरसाइजेस और हड्डी को स्ट्रांग करने के लिए दवाइयां चालू रखनी पड़ेंगी। आप वजन अगर ज्यादा है तो वजन कम करने से भी घुटने का लाइफ बढ़ जाता है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिससे आपके घुटने का लाइफ डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी आजकल में ये कन्वेंशनल छोड़ के आजकल बात निकला है रोबोटिक रोबोटिक रोबोटिक। ये रोबोटिक है क्या चीज? तो ऐसे नहीं है कि रोबोटिक में रोबोट कुछ काम करता है, समझे आप? तो रोबोटिक का एडवांटेज क्या है कि रोबोट जो है मुझे हेल्प करता है ये कटिंग के हिसाब से। तो वो नॉर्मल में हम जो करते हैं, नॉर्मली हम नॉर्मल अपना सॉ रहता है जहां से हम वो हड्डी को काटते हैं। ये रोबोट में एक बरिंग सिस्टम का प्रिंसिपल है। मीन्स जैसे आप छोटा सा हल्का सा ऐसे ऊपर टिश्यू रखो, समझो ये आपकी घुटने की हड्डी है, वो खाली ऐसा बरिंग 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 करके मुझे हेल्प करता है वो गंदा हड्डी निकालने के लिए। फायदा क्या है, क्योंकि वो रोबोटिक कंट्रोल के अंदर आता है तो इसलिए वो आजू बाजू में कोट बोलते हैं ना, सॉफ्ट टिश्यू के आसपास कहाँ जाता नहीं है। वो प्रिसिशन जो बोलते हैं वो प्रॉपर खाली जितना काटना है उतना ही गंदा हड्डी निकालता है। उसके कारण ये सर्जरी को हम पेनलेस सर्जरी बोलते हैं। Means robotic surgery would come under the thing that why do we need robotic surgery? Because it is painless surgery, because इतने precision से इतना, because it cuts so precisely, means खाली जो गंदा हड्डी थोड़ा आजू बाजू में भी नहीं घूमता है, एग्जैक्टली खाली गंदा हड्डी जो ऊपर के घुटने के ऊपर हड्डी वाली और नीचे के हड्डी का खाली वो गंदा हड्डी निकालने के कारण मोबिलाइजेशन मीन्स हम पेशेंट को जल्दी भी मोबिलाइज कर सकते हैं और उसमें भी पेशेंट को इतना तकलीफ या दर्द नहीं होता है। तो मेन एडवांटेज अगर आप बोलेंगे रोबोटिक सर्जरी का क्या है कि मेरा पेनलेस सर्जरी हो जाता है, बिना पेन का सर्जरी हो जाता है। और बिकॉज वो रोबोट खाली जितना जरूरी है उतना ही निकाल पाता है, इसीलिए हम पेशेंट को भी जल्दी चला के उनको मोबिलिटी जो बोलते हैं मोबिलाइजेशन फास्टर रहता है। मोबिलाइजेशन फास्टर रहता है, रिकवरी फास्टर रहता है। मीन्स पेशेंट का जो रिकवरी पीरियड जो नॉर्मल कन्वेंशनल के हिसाब से समझो 3 से 6 महीना जो लगता है, इसमें डेफिनेटली उससे अच्छा लगता है और पेशेंट को ही समझता है कि मेरे टिश्यूज में अंदर इतना नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से अच्छी हो सकता हूँ। तो कमिंग बैक टू रोबोटिक सर्जरी, ऐसे नहीं कि अपना कन्वेंशनल जो हम करते हैं अच्छा नहीं है, पर ये एक एडवांसमेंट है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके पेशेंट का हमको पहले सीटी स्कैन कराना पड़ता है रोबोटिक सर्जरी के लिए, और उस हिसाब से वो सीटी स्कैन के रिपोर्ट के हिसाब से हम वो सब इंफॉर्मेशन रोबोट को देते हैं कि कैसा है हड्डी का पोजीशन क्या है। तो हमारा ऑपरेशन के पहले का जो प्लानिंग रहता है वो प्रॉपर प्लानिंग हम पहले से ही ऑलरेडी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन से टाइप का इम्प्लांट डाल रहे हैं, कौन से साइज का इम्प्लांट डाल रहे हैं, सब कुछ प्लानिंग हमारा ऑपरेशन के पहले ही हो जाता है। और रोबोट हमको हेल्प कर रहा है ऑपरेशन के टाइम, इसीलिए ये सेम प्लान हम परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑपरेशन के बाद। तो प्रिसिशन बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी बोलते हैं ना, ऑपरेशन के पहले का भी इतना सुपर रहता है और ऑपरेशन के बाद का भी वो फिटिंग परफेक्ट रहता है। तो दिस वाज अ स्मॉल थिंग जस्ट टू लेट यू नो व्हाट रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज। नॉर्मल सब कुछ सेम है, मीन्स पहले जैसे हम काटते हैं हड्डी जैसे कन्वेंशनल रेगुलर सर्जरी में, पर ये रोबोट हमको डेफिनेटली मदद करता है जहां पे वो कटिंग प्रिसिशन से करता है, इसीलिए पेनलेस रहता है सर्जरी और हम पेशेंट को फास्टर मोबिलाइज कर सकते हैं। आपकी तरफ से अगर आपको कुछ प्रश्न या कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू उदय। Yes, sir. या So our first question is robotic surgery काफी expensive है,
तो उसके हिसाब से अगर कन्वेंशनल जो सर्जरी होती है और रोबोटिक सर्जरी होती है, उन दोनों में कुछ फर्क होता है इस Right. रिलेटेड टू पहले तो सोचो कि ये एक्सपेंसिवनेस? अभी हमारे सेटअप्स में जहाँ पे सेंटर्स में है, स्पेशली चेंबूर में जो जन हॉस्पिटल में जो सेटअप है, वहां पे हमने कुछ भी अपने चार्जेस हमारे बढ़ाए नहीं है। मीन्स जो भी समझो, अगर पेशेंट को कन्वेंशनल सर्जरी का जो भी इंश्योरेंस में जो भी क्लेम है या उनका रेगुलर, वो रेट्स हमने सेम रखा है। रोबोट का एडिशनली कुछ 30,000 to 50,000 एडिशनल चार्जेस जाता है। तो हमने इसमें ज्यादा तो कुछ ज्यादा बढ़ाया नहीं है, पर पेशेंट ये रोबोट के खर्चे के हिसाब से रोबोट को मेंटेन करने के लिए हमको 30 to 50,000 रुपीज एडिशनल जो चार्जेस है वो रोबोट के लिए आता है। तो सर्जरी चार्जेस और बाकी का हॉस्पिटल का कोई भी चार्ज कुछ हमने बढ़ाया नहीं है। तो वो हमने प्रैक्टिकल और मिनिमम रखा हुआ है, जो आपके रेगुलर सर्जरी के रेट्स के हिसाब से ही है। क्या उधर? Sir, second question is, at what age one should consider knee replacement surgery? तो एज इज नॉट अ डेटरेंट। मेरा कहना है कि मेरे सबसे छोटे पेशेंट जो है, यंग पेशेंट है, 34-year-old पेशेंट है, और एक सबसे एल्डेस्ट पेशेंट जो है मेरे 89-year-old है। तो क्वेश्चन आंसर ये है कि जब तक आपका खुद का घुटना चल रहा है, मीन्स अच्छी तरह घसाई नहीं हो रही, अच्छा घुटना चल रहा है, उसको बचा के रखना है। हम जो ऑपरेशन में जो हम कर रहे हैं, हम अपने ओरिजिनल घुटने के कहाँ पे भी आसपास नहीं है, इसलिए जब सब बचा सकते हैं उसको बचाना जरूरी है। तो एज इज नॉट, ये 34-year-old या 36-year-old का जो मैं बोल रहा हूँ, उनको संधिवात की बीमारी में समझो एक 20-25 साल की उम्र से चालू हुआ है। तो जब वो आए थे 30-35 में, उनका पूरा घुटना घस गया था। तो एज इज नॉट अ डेटरेंट। क्वेश्चन आता है कि जब तक आपका घुटना अच्छा है उसको हमको चलाना है। अगर पूरा घस जाता है तो उम्र 35 हो कि 85 हो, ऑपरेशन का ऑप्शन हमको रखना पड़ता है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या रोबोटिक सर्जरी किसी तरह के पेशेंट में नहीं किया जा सकता है? कम अगेन विद दैट, वापस बता। रोबोटिक सर्जरी किस तरह के पेशेंट में नहीं किया जा सकता है? तो अभी क्या होता है, ऐसे तो कॉन्ट्राइंडिकेशन तो है नहीं। नॉर्मल जैसा आपका रेगुलर सर्जरी में समझो पेशेंट को सीवियर डायबिटीज है, तो वो हम ऐसा नहीं करने का तो कॉन्ट्राइंडिकेशन एक में भी नहीं है। मैं बोलूंगा, अगर मेरा प्रॉब्लम आता है जब मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि मैं दोनों घुटनों का ऑपरेशन में एक साथ करूं कि नहीं करूं, तेवा मुझे जब वो टाइम मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं कि समझो पेशेंट को सीवियर डायबिटीज है, पेशेंट को एक किडनी है, पेशेंट को सीवियर हार्ट का इश्यूज है, तो हम दो नहीं करते, पर एक तो कुछ भी हो जाए, एक का तो हम हमेशा बंदोबस्त कर सकते हैं। और रेगुलर सर्जरी हो कि रोबोटिक सर्जरी हो, वो करने में कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। Okay, सुधर, या there is one more last question. या Uh, After replacement surgery, which are the exercise recommended? नॉर्मली पेशेंट को मैं ऑपरेशन के पहले सिंपल घुटने को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइजेस सिखाता हूँ। 2 या 3 टाइप के एक्सरसाइजेस रहते हैं जो पेशेंट अपने आप से भी घर पे ऑपरेशन के बाद कर पाता है। वी डोंट इवन नीड अ फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट सर्जरी इन मेनी ऑफ द केसेस। सो इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट कितना मोटिवेटेड है एक्सरसाइज और ऑपरेशन के लिए। पेशेंट अगर मोटिवेटेड नहीं है, कि पेशेंट बोलता है कि मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरे ऑपरेशन कराओ, तो वो रिजल्ट हमेशा फेल होता है। तो ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पेशेंट मोटिवेशन की, पेशेंट अपने आप से डिसाइड करता है कि मुझे चलना है, इसलिए मुझे ये ऑपरेशन करना है, तो वो एक्सरसाइज भी अपने आप से ही कर पाता है। हमको कोई एडिशनल एक्सरसाइज के डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती है आफ्टर सर्जरी। There is one last question, sir. Are there any risk of robotic surgery failure? वापस जैसे मैंने बोला है, द नॉर्मल सर्जरी के जो भी रिस्क रहते हैं, वैसे रोबोटिक सर्जरी में मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल रोबोट आके काम करता है। सर्जन इज द बॉस, सर्जन इज इन फुल कंट्रोल। तो वो ऊपर से ही हमेशा कंट्रोल करता है, और ऐसे नहीं कि रोबोट आके पूरा काटता है और करता है। रोबोट मुझे खाली थोड़ा हेल्प करता है, वो कटिंग और प्रिसिशन सर्जरी करने के लिए। काम तो मैं ही रोबोट हूँ, मैं ही रोबोटिक हूँ, और मेरे अंडर ही कंट्रोल रहता है। वो फुल कंट्रोल कुछ ऐसे रोबोट के हाथ में नहीं रहता है जहां पे आपको सोचना पड़ता है कि ये डेंजरस है और इसमें सेफ्टी नहीं है। कंट्रोल्स आर इन द सर्जन्स हैंड ऑल द टाइम।
Thank you, sir. So thank you so much, sir, for this wonderful informative session about robotic knee replacement surgery. I'll also thank to all my viewers and NRI who joined the session and supported BoneFit and asked questions related to our topics. If you all are facing any problem regarding osteoarthritis, you can consult Dr. Rakesh Nair, sir, at Zen Hospital Chembur and PD Hinduja Hospital, Khar. Thank you, sir. Thank you Yeah, so much. welcome, welcome. My pleasure. Ronak ji.